میں عمرہ کرنے گئی تو طواف کرتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر پتہ چلا کہ مجھے ایک عربی اٹھا کر ہسپتال لے آیا ہے۔ میں نے اس عربی کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا آپ کو میرے گھر کھانا کھانا ہوگا، تبھی میں شکریہ قبول کروں گا۔ میں مان گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی، مگر جو ہی میں بیڈ پر بیٹھی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس عربی نے تو مجھے سعودی عرب میں رہتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ میں کافی حد تک عربی زبان بھی سیکھ چکی تھی، مگر میرا یہاں پر دل نہیں لگتا تھا۔ شادی سے پہلے تو مجھے بہت سپنے دکھائے گئے تھے، مگر یہاں آ کر تو پتا چلا تھا کہ سعودی عرب میرے لیے ایک جیل سے کم نہیں ہے، ایک ایسی جیل جہاں پر اگلے ہی لمحے کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں چلتا تھا۔ یوں تو مجھے گھر سے نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، مگر کبھی کبھار میرے شوہر کو نہ جانے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی مجھے ایک لمبی لسٹ ہاتھ میں تھما کر کہتا تھا کہ یہ سب چیزیں لے آؤ۔ وہ چیزیں ایسی ہوتی تھی جن کو پورا کرتے کرتے شام کے اندھیرے چھا جاتے تھے۔ میرے شوہر کی فرمائشیں بڑی عجیب سی ہوتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب مجھے سعودی عرب آئے ہوئے 2 ماہ گزرے تو میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا ماہنور میں چاہتا ہوں کہ اب تم یہاں کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل جاؤ۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ گھر میں رہ رہ کر میں بھی بہت بیزار ہو چکی تھی۔ میں بولی فیضان مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس نے میرے سوال کے جواب میں مجھے ایک لمبی سی لسٹ تھما دی اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر دور ایک بازار میں چھوڑایا تھا۔ کہنے لگا کہ جب یہ چیزیں تم خرید لو تو مجھے کسی بھی اسٹور والے کے نمبر سے کال کر لینا، اور ایک چٹ پر اپنا موبائل نمبر لکھ کر مجھے تھما دیا۔ میں پاکستان میں ہی خود ہی سودا سلف وغیرہ لایا کرتی تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی تھی۔ میرا شوہر تو چلا گیا۔ میں نے لسٹ کھول کر دیکھی تو حیران رہ گئی تھی کہ اس پر بڑی عجیب و غریب چیزیں لکھی تھیں۔ 21 دانے لونگ۔ اب میں حیران تھی کہ 21 دانے لونگ کہاں سے لوں۔ میں نے اسٹور میں کھڑی ہیلپر لڑکی سے پوچھا تو وہ مسکرائی اور بولی آپ یہ پیکٹ لے لیں، ہمارے اسٹور پر ہر چیز پیکٹ میں ہی موجود ہوتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور لونگ کا پیکٹ رکھ لیا۔ پھر 50 دانے الائچی، 104 دانے چاول، 72 دانے چنا دال۔ میں یہ سارے لسٹ پڑھ کر مسکراتی رہی اور پیکٹ جمع کرتی رہی۔ پہلے دن میری شاپنگ جلدی ہو گئی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا تم نے اتنی جلدی سب کچھ خرید لیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میرا شوہر مجھے گھر لے گیا۔ گھر میں میری ساس، شوہر اور 2 نندیں رہتی تھیں۔ ہم گھر پہنچے تو سبھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فیضان کہنے لگا یہ سب چیزیں ادھر ہی لے آؤ۔ میں وہ سارے پیکٹ اٹھا کر ان کے سامنے لے گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا 21 دانے لونگ لے کر آؤ۔ میں نے پیکٹ اپنے شوہر کے سامنے کر دیا تو اس نے غصے سے مجھے گھورا اور بولا تم نے لسٹ غور سے نہیں پڑھی تھی کیا؟ میں نے 21 دانے لونگ نہیں لکھا تھا، جبکہ تم پورا پیکٹ اٹھا کر لے آئی ہو۔ پھر اس نے وہ پیکٹ اٹھا کر دیوار پر بھی مارا تھا۔ پھر 104 دانے چاول مانگے تو اب میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں نے پھر سے پیکٹ لا کر فیضان کو تھما دیا۔ تب میری ساس غصے سے کہنے لگی بیٹا تمہاری بیوی تو بہت ہی بیوقوف ہے۔ مجھے یہ بتاؤ ماہنور تم نے گھر میں ایسے کون سے پہاڑ توڑنے تھے جو جلدی جلدی یہ پیکٹ اٹھا کر لے آئی ہو؟ تم سے جتنی چیزیں منگوائی تھی وہ کیوں نہیں لے آئی؟ میں بولی آنٹی اسٹور میں ہر چیز پیکٹ میں ہوتی ہے۔ تبھی میری نند سونیا کہنے لگی آپ میں ذرا عقل نہیں ہے، پیکٹ کھول کر بھائی کی مطلوبہ چیزیں نکال لیتی۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا کہ مجھ سے چھوٹی ہو کر مجھے درس دے رہی ہے۔ میں بولی سونیا کیا پیسے درختوں پر اگتے ہیں جو میں ایسا کرتی؟ تب میرا شوہر غصے میں بولا اپنی بکواس بند کرو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری بہن کے ساتھ اس لہجے میں بات کرو؟ امی میں اسی لیے پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں کے سب لوگ بھوکے ننگے ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، ان کی بات پیسے سے شروع ہو کر پیسے پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر ان لوگوں کو کیا پتا جو اتنی لاپرواہی سے خرچ کرتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں وہاں سے چپ چاپ نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے پاکستان بہت یاد آ رہا تھا، وہاں پر میرے اپنے لوگ تھے، میرے اپنے رشتے تھے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ہمارے گھر میں غربت بہت زیادہ تھی۔ میں 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ابو حیات نہیں تھے میرے لیے۔ جب فیضان کا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی ماہنور تمہارے لیے سعودیہ میں رہنے والے ایک لڑکے کا رشتہ آیا ہے
बहुत अच्छे और खाते पीते लोग हैं। तुम तो जानती हो कि सऊदी अरब की रिहाइश कितनी महंगी है, मगर लड़के की पूरी फैमिली वहीं पर रहती है और वो तुम्हें भी शादी के बाद अपने साथ ले जाएंगे। मेरी बेटी, तुम सऊदीया जाकर उम्रा और हज करना और अपने कदम मजबूत करने की कोशिश करना, और हो सके तो अपने भाई को वहीं बुलाने की कोशिश करना ताकि हमारे हालात भी बदल जाएं। मैंने अम्मी से वादा किया था और बोली थी मैं वहां जाकर फैजान से कहूंगी कि वो मुझे जॉब दिलवा दे। जब तक मेरे भाई अपने कदमों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक मैं ही आपको सपोर्ट करूंगी। अम्मी बहुत खुश हो गई थी और झोलियां उठा उठाकर मेरे लिए दुआएं करने लगी थी। मुझे क्या इल्म था कि यहाँ आकर मुझे अपने घर वालों से बात करने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। मुझे हफ्ते में एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन करने की इजाजत मिलती थी और उस वक्त भी मेरी सास मेरे सर पर खड़ी होती थी। मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया जाता था। मैं अम्मी को अपने हालात से आगाह नहीं कर पाती थी। रिश्ते करवाने वाली औरत ने हमें जितने ख्वाब दिखाए थे उनके पेशे नजर तो अम्मी यही गुमान करती होगी कि मैं तो बहुत ऐशो इशरत भरी जिंदगी गुजार रही हूँ और उनको यहाँ आकर भूल गई हूँ। मगर यहाँ मुझ पर जो बीत रहा था उसके मुतल्लिक या तो सिर्फ मैं जानती थी या मेरा खुदा जानता था। मेरी हैसियत यहाँ एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं थी। मैं सारा सारा दिन घर के काम काज किया करती थी, जबकि मेरी नंदे मुझ पर हुक्म चलाती ना थकती थी। मैं फैजान की तवज्जो पाने की कोशिश करती तो वो भी मुझे नजरअंदाज कर दिया करता था। कभी कभार जब उनका मूड खुशगवार होता तो मुझे इस बात का एहसास दिला देता कि मैं उसकी बीवी हूँ, नहीं तो मेरी औकात यहाँ पर फकत एक मुलाजमा की सी थी। यूं ही मैं अपने कमरे में बैठी रोती रहती थी। शाम से रात हो गई तो मेरे कमरे का दरवाजा खुला। दिल उछलकर हलक में आ गया था। मैं सोचने लगी कि शायद फैजान मुझे मनाने आया होगा। तभी मेरी सास ने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी थी। वो हाथ नचा नचा कर कहने लगी, पाकिस्तान से फोन आया था, तुम्हारा वहाँ पर कोई मर गया है जिसका तुम सोग मना रही हो। ये बात सुनकर तो मेरा दिल छलनी छलनी हो गया था। मैं बोली, आंटी अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं, खुदा का कुछ खौफ करे। वो कहने लगी, खुदा का खौफ ही है जो तुम इस वक्त मेरे घर पर मौजूद हो, नहीं तो तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भिजवा देती। फिर जब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ती तब पता चलता। चलो निकलो अपने कमरे से और खाना बनाओ, सोनी और मिशेल को भूख लगी है। मैं खुद से बोली, अगर भूख लगी है तो उनसे कहे ना कि वो कुछ बना ले, अब इतनी छोटी भी नहीं है वो। मेरी बात सुनकर तो मेरी सास ने हंगामा बर्पा कर दिया था। उसने चीख चीख कर मेरे शोहर को मौके पर बुला लिया और झूठे इल्जामात मुझ पर लगाने लगी। उस दिन मेरे शोहर ने मुझ पर हाथ उठाया था और उसने ऐसा हाथ उठाया था कि कई दिन मेरे जिस्म पर नील पड़े रहे थे। और उस दिन मुझे अपनी हैसियत का इल्म हो गया था। उन लोगों के सामने जुबान खोलने का मतलब था अपनी शामत को आवाज देना था। इसलिए मैंने अपनी जुबान को हमेशा हमेशा के लिए सी लिया था। मेरी दोनों नंदे बड़ी अजीब सी थी। वो सारा सारा दिन पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती थी और फिर शाम के वक्त खूब बंठन कर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने चली जाया करती थी। यूं तो मेरा शोहर बहुत सख्त मिजाज था, मगर उसने कभी अपनी बहनों को रोक टोक नहीं की थी। खैर, इस वाक़ये के 2 हफ्ते बाद मेरे शोहर ने मुझे फिर से एक लिस्ट थमा दी थी और कहने लगा कि तुम पैसों की फिक्र हरगिज मत करना, जितनी चीजें इस पर लिखी हुई हैं उतनी ही लेकर आना, आज जल्दी करने की कोशिश हरगिज मत करना। मैंने सर हिला दिया। आज भी मेरा शोहर मुझे उसी बाजार में लेकर गया था जहाँ पहले लेकर गया था। मैं स्टोर पर चली गई। मैंने जब मतलूबा चीजें खरीद ली तो स्टोर के मालिक से इजाजत लेकर एक कोने में बैठकर सारे पैकेट खोलकर बैठ गई और एक एक चीज को गिनने लगी। मैंने महसूस किया था कि स्टोर में आने जाने वाले लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। लोग मुझे पागल समझ रहे थे। एक अरबी मर्द मेरे पास आया और कहने लगा कि आपको किसी मदद की जरूरत है। मैंने महसूस किया है कि आप कुछ परेशान हैं। मैंने नफी में सर हिला दिया तो वो मुस्कुराकर वापस चला गया। आज मुझे 6-7 घंटे लग गए थे। फिर मैंने फैजान को फोन करके बुला लिया। आज वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। कहने लगा, आज अगर तुमने चीजों में गड़बड़ की हुई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मैंने सोचा था कि घर जाते ही लंबी तान कर सो जाऊंगी, मगर घर में दाखिल हुई तो चकरा कर रह गई। हर तरफ बहुत ही गंद फैला हुआ था।
ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी पार्टी का इंतजाम किया गया था। मैं हैरत से बोली, ये सब क्या है? मेरी सास ने नाक से मक्खी उड़ाई और जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली गई। फैजान कहने लगा, तुम जल्दी जल्दी से हर चीज समेट लो, मुझे ये कचरा पसंद नहीं है। मैं तो अपने नसीबों को रोने लगी थी। खैर मजबूरी थी, शोहर की बात मानना पड़ी थी। मेरी नंदों ने कभी मुझसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा था। मैं जब भी उनके पास जाकर बैठती तो वो उठकर चली जाती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी नंदों की सरगर्मियां कुछ मशकूक सी थीं। लड़कों से बातें किया करती थी, मगर जैसे ही मुझे देखती तो फौरन उठकर चली जाया करती थी। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत दुख हुआ था कि वो अपने भाई की आंखों में धूल झोंक रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शोहर को उसकी बहनों के करतूतों से जरूर आगाह करूंगी, मगर इससे पहले मैं कोई सबूत ढूंढ लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने सबूत के बगैर बात की तो शायद ये लोग मुझे जिंदा ही दरगोर कर देते। कुछ दिन तो आराम से गुजर गए थे, मगर फिर से मेरे शोहर को मुझसे शॉपिंग करवाने का दौरा पड़ गया था। उसने मुझे लिस्ट थमा दी और अपनी गाड़ी में बिठाकर स्टोर तक ले गया। मैं बोली, फैजान, आपसे एक बात पूछूं, आप मुझसे इस तरह की चीजों की खरीदारी क्यों करवाते हैं? मेरा शोहर मुझे कहने लगा, तुम मुझे पागल समझ रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें आजमा रहा हूँ और इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहने के काबिल हो भी या नहीं। दरअसल मैं पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहता था। ये जो शादी हुई है ना, मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम्हें जब तक अपने रंग ढंग में नहीं ढाल लेता तो तुम्हें कबूल नहीं कर पाऊंगा। मैं बोली, फैजान, ये कौन सा तरीका है? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही फैजान ने मुझे टोक दिया था। फिर वो मुझे कहने लगा, मुझे ज्यादा बातें करने वाली औरतें पसंद नहीं है, चलो उतरो गाड़ी से। मैं बहुत जल्दी के साथ गाड़ी से उतर आई थी। आज मेरा दिल मामूल से कुछ ज्यादा ही उदास था। मैं सारे पैकेट खरीद कर अल्लाह ताला के घर खाना काबा चली गई, क्योंकि हम मक्का शहर में रहते थे और वो वहाँ से करीब पड़ता था। मैं 2 दफा पहले भी वहाँ जा चुकी थी। मैंने वहाँ जाकर नमाज पढ़ी और मैं रो रो कर दुआ कर रही थी। तभी अचानक से मुझे चक्कर आए और मैं गिरकर बेहोश हो गई और फिर मुझे बाजू में सुई चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल ली थी। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ था कि मैं तो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हूँ। नर्स ने मुझे होश में आता देखा तो मुस्कुराकर मेरी खैरियत दरियाफ्त की थी। मैंने कहा कि मुझे क्या हुआ था। वो मुझे कहने लगी, ऐसी हालत में खुराक की तरफ तवज्जो ना दे तो ऐसा ही होता है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ है मुझे? मैं ठीक तो हूँ ना? वो नर्स मुस्कुरा दी और बोली, जी जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, बल्कि बहुत खुशी की बात है। आप माँ बनने वाली हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। मुझे 100% यकीन था कि औलाद की खबर सुनकर मेरी सास का दिल मेरे लिए साफ हो जाएगा और मेरा शोहर भी मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं नर्स से बोली, मैं घर जाना चाहती हूँ। तब वो बोले, ठीक है, आप घर जा सकती हैं, मगर पहले डॉक्टर से अपनी दवाई लिखवा लें। मैंने असबाब में सर हिला दिया था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं अस्पताल कैसे पहुंची। ये सवाल जब मैंने नर्स से पूछा तो वो कहने लगी, आप मेरे साथ बाहर आ जाएं। वो राहदारी में बैठा आदमी आपका इंतजार कर रहा है। जब मैं बाहर निकली तो सामने एक अरबी मर्द बैठा था। मैं उसके पास गई और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, आप मुझे अस्पताल ले आए। वो कहने लगा, मैं आपका शुक्रिया यूं ही कबूल नहीं करूंगा, आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, आपको चाय पिलाकर शुक्रिया कबूल करूंगा। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो अभी घर लौटने में बहुत टाइम पड़ा था। मैंने उस अरबी के साथ जाने के लिए हामी भर ली थी, क्योंकि मैं उसके घर से अपनी वालदा को फोन करके अपने हालात से आगाह करना चाहती थी। उन्हें बताना चाहती थी कि आपकी बेटी आपको हरगिज भूली नहीं है, बल्कि मैं तो खुद ही भयानक हालात से गुजर रही हूँ। फिर उन्हें ये भी तो बताना था कि मैं उम्मीद से हूँ। खैर, मैं अरबी मर्द के साथ चली गई। उसका घर अस्पताल से करीब ही था। वो मुझसे छोटे मोटे सवाल जवाब करने लगा था। वो बोला, तुम सऊदीया कब आई हो? मैंने उसे बताया कि मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और अपने शोहर के साथ रहती हूँ। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, वो मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। वो अरबी मर्द कहने लगा, तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मैं बोली, मुझे यहाँ के सिस्टम का कुछ पता नहीं है। हफ्ते में 1 बार मुझे बाजार भेज दिया जाता है और वहाँ से भी मुझे अजीबो गरीब चीजें मंगवाई जाती हैं। इतनी देर में उस अरबी मर्द का घर आ गया था। वो कहने लगा, तुम अंदर चलो, फिर हम इस मामले पर तफसील से बात करते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ
कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं मुतमईन होकर उसके घर चली आई थी। उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद अपनी मुलाजमा को आवाज देकर बुलाया और कहा कि फ्रेश जूस निकाल कर लाओ, मगर मैं जो ही सोफे पर बैठी तो मुझे मतली होने लगी थी। मेरा दिल बहुत खराब हो रहा था। मैंने उस अरबी मर्द को इशारा किया और बाथरूम के मुतल्लिक पूछा था। उसने मुझे बाथरूम दिखा दिया। मैं मतली करती जा रही थी। मैंने अम्मी से सुन रखा था कि प्रेगनेंसी में छोटी मोटी बदबू से भी दिल खराब होने लगता है, और आज मैं खुद पर यह तजर्बा कर रही थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोई चीज मरी पड़ी है। मैं बाहर निकली तो अरबी मर्द कहने लगा, सब खैरियत तो है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं वहाँ से जल्द अज जल्द भाग जाना चाहती थी क्योंकि मेरा बैठना दुश्वार हो चुका था। उस अरबी मर्द ने मेरी हालत देखी तो कहने लगा, तुम बैठो, मैं जूस लेकर आता हूँ। वो उठकर किचन में चला गया तो मैं उठकर खड़ी हो गई थी। ना जाने उस सोफे के नीचे ऐसा क्या पड़ा था जिसकी बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही देख लेती हूँ, मगर मुझसे ज्यादा झुका नहीं जा रहा था। मैंने सोफे को पीछे करने की कोशिश की तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसमें तो मेरा हाथ धंस गया था। वो एक जदीद किस्म का सोफा था जो ऊपर से तो सोफे के मायने लगता था, मगर अंदर से एक संदूक था। मैंने उसके ढक्कन को खोल कर देखा तो मेरे हलक से चीखें बरामद होने लगी थी, क्योंकि अंदर तो किसी औरत की लाश पड़ी थी और उस पर बहुत से परफ्यूम फेंके गए थे ताकि उसकी बदबू खुशबू में बदल जाए। मेरी चीखें सुनकर वो अरबी मर्द भी उधर ही आ गया था। मैं चीखती चिल्लाती जा रही थी, वो भी आगे बढ़ा। जब उसने सामने का मंजर देखा तो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक वो कहने लगा, मेरी यास्मीन, मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस औरत से मोहब्बत की वो तुम हो। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी औरत के मुतल्लिक नहीं सोचा था। तुमसे शादी की तो लगा कि जिंदगी हसीन हो गई है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए और फिर तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई कि तुम मुझे औलाद देने वाली हो। मगर एक दिन मुझे मुलाजमा ने बताया कि तुम मेरे नाम एक खत लिखकर अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई हो। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं थर थर कांपने लगा था। खत पढ़ा तो उस पर लिखा था कि तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए मुझे छोड़कर जा रही हो। यास्मीन, इस खत के नीचे तुम्हारे अंगूठे का निशान भी तो था। मैं बहुत रोया था, मगर तुम आज मुर्दा हालत में मेरे ही घर सोफे के नीचे से मिली हो। अरबी मर्द रोता जा रहा था, जबकि मेरी नजरें उसकी मुलाजमा पर पड़ी थी। वो मौके से फायदा उठाकर फरार होना चाह रही थी। मैंने जल्दी से अरबी मर्द को उसकी जानिब मुतवज्जा किया था। वो एकदम होश में आ गया। उसने अपनी मुलाजमा को हाथ से पकड़ लिया और चिल्लाने लगा था। वो बोला, तुमने मुझे बताया कि मेरी बीवी घर से भाग गई है। तुमने मुझे उसका झूठा खत दिखाया। मुझे बताओ, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? तुमने मेरी बीवी को जान से मारा है ना? वो मुलाजमा थर थर कांपने लगी। वो बोली, मैंने नहीं मारा, ये सब एक हादसे के नतीजे में हुआ है। दरअसल मैं यहाँ काम करने सिर्फ इसीलिए आती थी क्योंकि मुझे किसी से इल्म हुआ था कि आप बहुत ही मालदार आदमी हैं। मैं इस घर में काम करती रही और कीमती चीजें रोजाना चोरी करती रही। एक रोज मालकन की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, मालकन मुझे पुलिस के हवाले कर देती और मेरी सारी जिंदगी खराब हो जाती। इसलिए मैंने घर से फरार होने की कोशिश की, मगर मालकन ने मुझे बहुत मजबूती से थाम लिया था कि इसी सद्दाम में वो नीचे फर्श पर जा गिरी। मुझे नहीं इल्म हुआ कि उनके सर के कौन से हिस्से पर चोट आई थी। वो ऐसी बेहोश हुई कि दोबारा ना उठी और मुझे यकीन हो गया कि वो मर चुकी हैं। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अगर आपको इल्म हो जाता कि मालकन मर गई हैं, तो आप मुझे जिंदा ना छोड़ते। इसलिए मैंने मालकन को सोफे में छुपा दिया और रोज उनकी लाश पर एक नया परफ्यूम छिड़क देती हूँ ताकि किसी को इस लाश की बदबू ना आए। और आप इस कमरे में बहुत कम ही आते थे, इसलिए कभी आपको भी शक नहीं हुआ था। और फिर मैंने झूठ मूठ का खत लिखकर उसके अंगूठे का निशान बना दिया था। मैं मालकन को आज दफनाने वाली थी, मगर फिर आप आ गए और मेरा बना बनाया खेल खराब हो गया। अरबी मर्द ने अपनी मुलाजमा को पुलिस के हवाले कर दिया था और मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से वो सारी हकीकत जान पाया है। उसने फोन पर किसी से बात की और उसी वक्त कुछ लोग आकर उसकी बीवी की तदफीन के लिए उसे उठाकर ले गए थे। उसके बाद वो बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। मैंने हामी भर ली, मगर वहाँ भी एक सरप्राइज मेरा मुंतजिर था।
میں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہاں ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ وہاں پارٹی ہو رہی تھی جس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ میری دونوں نندے مردوں کے ساتھ رقص پیش کر رہی تھی جبکہ میرا شوہر بھی وہیں پر موجود تھا۔ میں مزید آگے بڑھی تو اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، امی ہمیں مہنور کے روپ میں کام والی تو مل گئی ہے، کیوں نہ ہم اس سے مزید فائدہ اٹھائیں اور اسے بھی رقص پر لگا دیں۔ میری ساس کہنے لگی، تمہارا مشورہ تو بہت اچھا ہے، اس کے آنے سے پہلے یہ پارٹی ختم کرواؤ ورنہ وہ بھاگ جائے گی۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہاں جوا بھی چل رہا تھا۔ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگی تھی۔ عربی مرد ابھی وہیں پر تھا۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے ایک بار پھر سے پولیس کو بلوایا اور میرے شوہر سمیت سب کو گرفتار کروا دیا تھا۔ بعد میں میرے شوہر نے پولیس کے سامنے یہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے گھر میں ہی ایک جوا خانہ بنا رکھا تھا۔ ہفتے میں 3 دن وہ یہاں پر یہ سب کام کرتے تھے۔ جس دن گھر پر ایسا کوئی فنکشن ہوتا تو وہ مجھے جان کر بازار بھیج دیتا تاکہ میں ان معاملات سے بے خبر رہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر میں اپنے ہونے والی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس عربی مرد نے مجھے شادی کی آفر کر دی جسے میں نے قبول کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے بچے کو اپنا نام دے گا۔ اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ بچے کی پیدائش تک میری طلاق نہ ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا میرا شوہر جیل میں تھا۔ میں نے اس سے طلاق لے لی اور عبداللہ سے شادی کر لی۔ وہ بہترین شوہر اور اچھا باپ ثابت ہوا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کو بھی سعودیہ بلوا لیا اور انہیں اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا تھا۔ میری زندگی اب بہت بہتر ہو گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے فیضان جیسے بد کردار شخص سے نجات دلوا کر عبداللہ کا ساتھ دیا تھا۔ ہم دونوں شادی کی پہلی سالگرہ پر حج کرنے گئے تھے۔ تب مجھے محسوس ہوا تھا کہ اگر اس دنیا میں اچھے لوگ موجود نہ ہوں تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے۔ آج میں یہ بات فخریہ طور پر کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اپنے شوہر عبداللہ سے بے انتہا محبت ہے اور میرا شوہر عبداللہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔